Welcome back. In our last video, we were discussing about the photoelectric effect, and we could qualitatively analyze different parameters like intensity, frequency, applied voltage, and the material we are taking or the material of interest on which the photocurrent will depend. Fine. We also discussed a few things like threshold frequency and retardation potential, but we have not yet come to a point where we could say, okay, mathematically, this is the equation governing the photoelectric effect. We are going to cover it in this particular video, and we will also see a few numerical examples. Let's say you have a piece of metal obviously placed in an evacuated tube, and you have another receiving electrode. If on this piece of metal, which is our subject target, photons are coming and striking. Okay, so these are coming from a source of light or source of photons. These photons are coming. Photons ki energy is always given as h into f, where f is the frequency. You can also consider h into nu, where nu is the frequency. Use any notation you want. Fine. But if we look at the frequency versus current diagram which we had, so let's say this is I and this is F. यहाँ करंट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है. अगर हम यहाँ से देखें तो what we will get is this, कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जीरो पर हमें कुछ नहीं मिल रहा था, फिर आगे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, वी वर नॉट गेटिंग एनीथिंग, देन सडनली देयर केम अ फ्रीक्वेंसी जहां पे हमें फोटो करंट मिलना शुरू हो गया. ठीक है, वी कॉल दैट फ्रीक्वेंसी एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Okay, we call that as threshold frequency, and this threshold frequency is a characteristic property of material itself. Fine. Here also the same thing will happen. What I'm saying is that you are giving net energy or total energy h into nu, assuming that the threshold frequency, which has to be less than nu naught anyways, h into nu naught, the threshold frequency is given by nu naught. Fine. यानी इतनी फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए थी न्यू नॉट इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर लाने के लिए. ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी होगी. सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी at a particular frequency nu, the maximum kinetic energy at a particular frequency nu is given by what? That the kinetic energy, let me call it Ke max, will be h nu, means the applied energy in terms of the frequency of the source, minus h nu naught, where nu naught is the threshold frequency of this material. This is the maximum kinetic energy. So what will be the minimum kinetic energy then? मान लीजिए अगर मैंने न्यू ही जो अप्लाई किया था दैट वाज न्यू नॉट के बराबर, सो द फोटो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली विल कम आउट ऑफ द सरफेस, लेकिन मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है. तो अगर इसमें मैं एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट करूं तो इट विल बी जीरो. सो द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू जीरो. और एक दूसरा नाम भी स्पेशली इस पर्टिकुलर एच न्यू नॉट के लिए है. इसे फाई या वर्क फंक्शन से भी डिनोट किया जाता है. एच न्यू नॉट या फाई से भी डिनोट किया जाता है. ठीक है, अब क्योंकि एनर्जी के टर्म्स में है और आपको ताल्लुक बिठाना है इस इक्वेशन से, या तो एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा. साथ ही रिलेशन आपको वोल्टेज के साथ में भी निकालनी है. ओके, तो आपने ये भी देखा था कि क्या पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा था. Okay, so we were discussing about voltage, and we also told you that these electrons are having a kinetic energy, and if we have a positively charged electrode here, then these electrons will be accelerated towards this positively charged electrode. लेकिन अगर इसका पोटेंशियल रिवर्स कर दिया जाए, इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग पॉजिटिवली चार्ज हम इसे नेगेटिवली चार्ज कर दें, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन
these electrons are carrying a kinetic energy given by EV. इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इनकी कुछ एनर्जी है, और ठीक इतनी ही काइनेटिक एनर्जी ऑपोजिट साइन की मैंने इन्हें यहां से अप्लाई कर दी. इट मींस रिपेल करने लगे अगर इलेक्ट्रॉन, एंड दैट वी कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो बेहतर है कि हम ये जो वैल्यू है हमारे पास Hc, इसकी एक इक्विवेलेंट वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल लें. उससे हमारे पास कई सारी चीजें सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाएंगी. तो पहला सवाल जो होगा वो है ये कि बताइए CH या 2 पाई H क्रॉस C की वैल्यू करीब करीब 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम्स के बराबर होती है, या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन नैनोमीटर्स के बराबर होती है. That's pretty simple. So we just have to prove H into C is equals to some amount electron volt nanometer. Fine, ये प्रूव करना है. H की वैल्यू क्या होती है? You can use it 6.6 into 10 raised to the power minus 35 joule per second. Fine. Joule per second होती है, joule second होती है. Anyways, so that is joule seconds. तो per second इन्वर्स कर दिया, तो per का per हो गया. Okay, so that's a joule second. Into C is what? C is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. ये हो गया H, ये हो गया C. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा जूल मीटर सेकंड स्क्वायर, या सेकंड से सेकंड कैंसिल, जूल इनटू मीटर बचेगा. सो दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ, so this is meter per second. You have 6.6 into 10 raised to the power minus 35 joule second into मीटर अपॉन सेकंड, और साथ में ये वैल्यू भी तो है 3 into 10 raised to the power 8. सेकंड से सेकंड कैंसिल, हमारे पास बचा क्या? This value 6.6 into 10 raised to the power minus 35 into 3 into 10 raised to the power 8 जूल मीटर. ठीक है. अब अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना हो तो आपको 1.6 10 to the power minus 19 से डिवाइड दे देना है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, this particular joule per meter is equals to 1.6 10 to the power minus 19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी करीब करीब 1240. अब यूनिट जूल से बदल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 10 to the power minus 9 एक बच रहा होगा, तो यू कैन राइट फॉर दैट नैनोमीटर इंस्टेड ऑफ मीटर, यू कैन राइट नैनोमीटर. तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर Hc की वैल्यू है. Okay, so given wavelength in lambda, you can find out its energy using this formula. Fine. Now we will come on to a separate question based on this theory itself. So आप ये याद रखिए that Hc is equals to 1240 electron volt nanometer, और ये into nanometer में, और इसी का इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले सवालों. ठीक है. जैसे कि एक सवाल है, let me just, जैसे कि ये it says that light of wavelength 2000 angstroms falls on aluminum surface मटेरियल बता दिया, जिसका की वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज, लेकिन ये वर्क फंक्शन के फॉर्म में दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. आपसे कहा गया है बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. हमें फॉर्मूला रिकॉल हो गया, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे. आपसे पूछा गया मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये आप जानते हैं. कट ऑफ वेवलेंथ पूछा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है. चलिए ये सारी चीजें हमें डिराइव करनी है या पता करनी है. थोड़ी देर पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे. फॉर्मूला था दैट जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो दी जाती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर. और थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव. फाइव इज वर्क फंक्शन. अब आपको वेवलेंथ दी है लाइट की, ना कि फ्रीक्वेंसी जिससे कि आप एनर्जी निकाल पाए. तो दैट्स प्रीटी सिंपल. आपको कुछ नहीं करना है. अगर नैनोमीटर्स में वेवलेंथ है 1240, तो एंगस्ट्रॉम में हो जाएगी 12400. तो हम इसे लिख सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम्स. ये Hc की वैल्यू लिखी है, डिवाइडेड बाय क्वेश्चन में कितनी वेवलेंथ दी है 2000 एंगस्ट्रॉम.
तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटोन की वजह से आई, माइनस बाहर निकालने में वर्क फंक्शन की वजह से कितनी खर्च हो जाएगी, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो निकाल के देखें ये कितना आता है। तो 12,400 डिवाइडेड बाय 2000 इज 6.2 माइनस 4.2 किया, यू आर गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो बाहर आ रहे हैं वो होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपको ऑलरेडी बताई थी, कितनी हो सकती है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलवेज। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो सकती है। आपसे पूछा है कि बताइए कट ऑफ वेवलेंथ कितनी है। अब कट ऑफ वेवलेंथ वेव फंक्शन से पता चलती है, कट ऑफ वेवलेंथ हमेशा वेव फंक्शन से पता चलती है। तो आपको दरअसल ये दिया था कि h न्यू नॉट जो कि फाई के बराबर है, जो कि h c अपॉन लैम्डा नॉट के भी बराबर है, और आपसे पूछा गया कि बताइए लैम्डा नॉट कितना है। ठीक है, तो h न्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी है आपको ऑलरेडी, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और hc की वैल्यू कितनी होती है, हमने देखा था, वो होती है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम्स, और ये रहा लैम्डा नॉट। तो यू कैन डिवाइड इट, यू विल गेट द वेवलेंथ इन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम्स डिवाइडेड बाय 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12,400 को डिवाइड दीजिए 4.2 से, यू विल गेट 2952.3 एंगस्ट्रॉम्स। ये आपकी कट ऑफ वेवलेंथ आ गई। कम से कम ये वेवलेंथ की लाइट तो होनी चाहिए कि वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाए, तो ये कट ऑफ वेवलेंथ आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेटेड होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद अ नेगेटिव साइन विल बी अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम। तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है तो 2 वोल्ट बोलना चाहिए एक्चुअली, तो एक्चुअली रिलेटेड है, लेकिन यहाँ एनर्जी नहीं, हम पोटेंशियल की बात करें इसलिए ई हट जाएगा। क्यू वी इज एनर्जी बट वी आर ओनली कंसर्न विद वोल्टेज। तो 2 वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन पे 2 वोल्ट से ज्यादा लग गया माइनस में तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है हमारे पास -2 वोल्ट्स। ये हुआ दूसरा सवाल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। एक और इसी क्रम में हमारे पास तीसरा सवाल है, लेट मी जस्ट शो दैट टू यू। सो हियर इज द लास्ट एग्जांपल in which we have to actually find out of the giving materials जैसे टैंटलम है, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, बेरियम, लिथियम, इनमें से किस मटेरियल को हम एज अ फोटो सेल, यानी इनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परसीवेबल अमाउंट में किस में दिखना देख पाएंगे हम इफ वी आर यूजिंग विजिबल लाइट। तो ये थोड़ा सा हमारी बैकग्राउंड नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि सबसे पहले हमें पता हो कि जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ मैं आपको बता दूं 400 से नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम्स तक होती है, पहली चीज। और अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि hc अपॉन लैम्डा से हम पता कर सकते हैं कि वर्क फंक्शन कितना है या एनर्जी कितनी हम अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग फोटॉन्स। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, द मैक्सिमम एनर्जी यू कैन अप्लाई इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नैनोमीटर अपॉन 400 अगर आप विजिबल लाइट ही यूज कर रहे हैं तो, या hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 700 नैनोमीटर्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि विजिबल लाइट की रेंज ऑफ वेवलेंथ है ये। तो मिनिमम यहाँ से मिलेगी एनर्जी, मैक्सिमम यहाँ से। तो आप कर लीजिए 1240 डिवाइडेड बाय 400 किया, मैक्सिमम आया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
तो अगर किसी मेटल या मटेरियल का 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फंक्शन है, वर्क फंक्शन है, तो यू कैन यूज विजिबल लाइट। या फिर मिनिमम देखें 1240 डिवाइडेड बाय 700 इज 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो if we have 1.77 electron volt or 3.1 electron volt, और इन दोनों के बीच में we have the work function which is going on or given to us, then we can use visible light for using that material as a photocell. Fine. Now it is given that tantalum has 4.2, तो इस रेंज के बाहर है, we cannot use tantalum. Tungsten has 4.5, we cannot use tungsten. Aluminium has 4.2, we cannot use aluminium. Barium has 2.5, 2.5 इसकी रेंज में है डेफिनेटली, तो वी कैन डेफिनेटली यूज बेरियम। एंड लिथियम हैज 2.3, लिथियम भी इस रेंज में आ रहा है, तो आप लिथियम को भी विजिबल लाइट की मदद से फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फाइन। अब एक छोटा सा सवाल जाने से पहले मैं आपको देना चाहता हूं, मान लीजिए यू आर यूजिंग लिथियम, ओके, एंड यू आर यूजिंग 400 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, उसको शाइन किया लिथियम के मेटल पे। बताइए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी। एक सवाल ये, और दूसरा जाते मैं ये देना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि जो वेवलेंथ यूज करें वो 700 थी, 400 ना होकर, तब मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी बताइएगा दोनों केसेस में। That's all. This covers, I think, most of the part of photoelectric effect. And photoelectric effect is indeed an effect which supports the particle hypothesis of light. यहाँ particle की तरह से behave करती है light, जहाँ पहले हम wave की तरह से behave करते देख रहे थे। Now particle is striking and particles are coming out, electrons are coming out. कुछ और ऐसे ही particle phenomena हैं that we will cover in the subsequent videos. Stay tuned. Thank you so much all of you.